ایک نایاب کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا۔ اپنے فن میں استاد اور انتہائی کامل تھا۔ انتہائی ذہین اور عقل کا تیز تھا۔ وہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی عمدہ اور عجیب و غریب چیز اپنے پیشے کے متعلق بناتا جس کو بیچنے کے بعد اسے بے شمار دولت اس کے ہاتھ آ جاتی۔ اسی طرح رفتہ رفتہ اس کے پاس اس کی محنت کا بہت سا مال جمع ہو گیا، اور جب مال جمع ہوا تو اس نے ایک جوان، پاکیزہ اور نہایت خوبصورت عورت کے ساتھ شادی کر لی۔ اس عورت کا نام حسن جان تھا۔ وہ اسی کی قوم سے تھی۔ اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور ایک خوبصورت اور نہایت معقول مکان کرایہ پر لے کر اس میں رہائش اختیار کر لی۔ اس کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا جو بلا کا ہوشیار تھا اور فقہ میں کافی علم رکھتا تھا، لیکن اس کے پاس سوائے تماش بینی اور زناکاری کے اور کوئی شغل نہ تھا۔ وہ دن رات برے کاموں میں پڑا رہتا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک روز اس نے سنار کی بیوی کو دیکھ لیا اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہزار جان سے اس پر فدا ہو گیا، اس پر عاشق ہو گیا، اور ہر چند کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح اس کی اس عورت تک رسائی حاصل ہو سکے۔ لیکن اس نیک اور صالح عورت نے اس برے آدمی سے اپنے آپ کو دور رکھا اور اپنی عزت اور حرمت کی حفاظت کی۔ لیکن وہ آدمی اتنا چالاک تھا کہ اس پر دل و جان سے فدا تھا اور اسی جانب اس کا دھیان لگا رہتا تھا، اور دن رات اسی کوشش میں لگا رہتا تھا کہ کسی طرح اسے اپنے قابو میں لے آئے، مگر اس کا بس نہیں چلتا تھا۔ جب اس نے یہ انجام دیکھا کہ اس کے سب مکر و فریب بیکار گئے ہیں تو کوئی ترکیب نہ سوچ سکا، تو اس نے ایک ڈھنگ یہ نکالا کہ حسن جان کے شوہر یعنی اس سنار سے اپنی دوستی پیدا کی، اس سے الفت بڑھائی اور ایسا رابطہ پیدا کیا کہ چند ہی روز میں وہ جوہری، وہ سنار، اسے اپنا سب سے اچھا اور مخلص دوست سمجھنے لگا، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس سے کوئی راز پوشیدہ نہ رکھتا اور کوئی کام بھی اس چالاک ہمسائے کے مشورے کے بغیر نہ کرتا۔ ایک روز سنار نے اپنے اس دوست یعنی اپنے چالاک ہمسائے سے کہا، دوست، مجھے لگتا ہے کہ میری نظر میں بہت فرق آ گیا ہے۔ مجھے یہ اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے کہ چند روز کے بعد میری نظر بالکل جاتی رہے گی۔ میری عورت جوان ہے اور میرے علاوہ اس گھر میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، کوئی مرد نہیں جو میرے مال و دولت کو سنبھال سکے اور حفاظت سے رکھ سکے، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کسی روز میری عورت کی نیت میں فرق آ جائے، وہ مجھے دھوکہ دے جائے، مجھ سے بے وفائی کرے اور میرا مال لے کر بھاگ جائے، یا کوئی بھی کنیز غلام موقع پا کر میرا مال و دولت لے اڑے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ پہلے سے ایسا انتظام کر دوں کہ میری دولت بھی حفاظت میں رہے اور میرے بڑھاپے کے لیے میرے کام آئے۔ چالاک دوست نے کہا، تم نے بڑی دور اندیشی اور بہت عقل کی بات کی ہے۔ بالکل، تمہیں اس کی حفاظت کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ میرے دل میں بھی اکثر یہی خیال ہوتا ہے، لیکن میں اس ڈر سے یہ بات اپنی زبان پر نہیں لایا کہ شاید تمہیں برا نہ لگے۔ تم اپنے دل میں اس بات کو برا نہ خیال کرو۔ میرا مشورہ ہے کہ تم صرف ضروری سامان اور زر نقد یعنی نقد دولت اپنے پاس رکھو، اور باقی تمام دولت اور مال اس شخص کے پاس رکھ دو جس پر تم سب سے زیادہ اعتبار کرتے ہو، جسے معتبر سمجھتے ہو، جس پر بھروسہ کرتے ہو، جسے تم اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو، اس کے پاس امانتاً یہ سب کچھ رکھ دو۔ سنار نے کہا، میرے پاس 5000 دینار نقد موجود ہیں، اور میرے دوست، مجھے تو اس دنیا میں تم سے زیادہ قابل اعتبار کوئی دوست نظر نہیں آتا، اور تمہارے اوپر مجھ کو پورا اعتبار ہے۔ اگر تم میری یہ درخواست منظور کرو تو میں تمہارا بڑا شکر گزار ہوں گا کہ ساری دولت میرے پاس رکھ لو۔ تمہارے پاس دولت رکھ کر مجھے ایک اور آرام یہ رہے گا کہ تم میرے نزدیک رہتے ہو، میرے ہمسائے ہو۔ مجھے جس وقت بھی کسی مال و دولت کی ضرورت ہوگی میں اسی وقت فوراً تمہارے پاس حاضر ہو جاؤں گا اور تم سے وہ لے لوں گا۔ دوسرے چالاک دوست نے کہا، میں تمہاری اس مہربانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھے اتنا قابل اعتبار سمجھا، اتنا بھروسہ کیا، اور خدا نے تمہارے دل میں میرے لیے اتنی عزت ڈالی۔ مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں تمہاری خدمت بجا لاؤں گا اور تم سے سرخروئی حاصل کروں گا۔ وہ بیچارہ سنار اس چالاک دوست کی باتوں میں آ گیا اور 5000 دینار اس کے حوالے کر دیے، اور اس طرح کیے کہ کسی تیسرے آدمی کو اس بات کی بھنک تک نہ پڑی۔ جب اس بات کو ایک مدت گزر گئی اور سنار کی دونوں آنکھوں کی بینائی یعنی اس کی دونوں آنکھوں کی نظر جواب دے گئی،
تو ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے پاس تو جمع پونجی ختم ہو گئی ہے، اب خرچ کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ تم میرے ہمسائے شفیق دوست کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام دینا اور کہنا کہ جو رقم میں نے تمہارے پاس امانتاً رکھوائی ہے اس میں سے 500 دینار مجھے دے دے، جن کی مجھے اس وقت اشد ضرورت ہے۔ حسن جان اپنے شوہر کے کہنے کے مطابق اپنے اس چالاک ہمسائے کے مکان پر پہنچی اور اس کو اپنے شوہر کا پیغام دیا۔ تو اس چالاک آدمی نے اس عورت کی بڑی خاطرداری کی اور اسے بٹھایا، عزت دی اور کہا 500 دینار کی کیا حقیقت ہے؟ میں تو تمہارے اوپر اپنی جان تک نثار کر دوں گا۔ تم سے زیادہ حسین و جمیل عورت اس دنیا میں نے نہیں دیکھی۔ اے عورت، میں تمہارے عشق میں ایک عرصے سے مبتلا ہوں اور دل و جان سے تم پر مرتا ہوں، لیکن تم نے تو کبھی نظر بھر کر مجھے نہیں دیکھا، میرے پاس بیٹھنا تک گوارا نہیں کیا۔ تمہارے دل میں میرے حوالے سے اتنی سختی ہے، کبھی تو ہم پر نظر کرم کرو۔ تمہارا شوہر بالکل نابینا اور بزرگ ہو گیا ہے اور تم جیسی حسین عورت کے قابل نہیں رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس جیسے لاچار بوڑھے اور اندھے کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو؟ میری محبت اور التفات میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تم میری جوانی اور خوبصورتی کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سن کر سنار کی پاکباز بیوی کو غصہ آ گیا۔ وہ ایک دم غیظ و غضب میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہا تم عجیب نالائق اور بے حیا مرد ہو، بےہودہ انسان، تم کو شرم نہیں آتی کہ پرائی عورت پر بری نگاہ ڈالتے ہو اور ایسی حماقت کی باتیں کرتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں خدا کا خوف بالکل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عورت نے چلنے کا ارادہ کیا تو وہ چلاک ہمسایہ اپنے دل میں نادم اور شرمندہ ہوا اور الٹا غصے میں آ کر کہنے لگا، اے بےہودہ عورت، میرے سامنے سے دفع ہو جا، دور ہو جا اور مجھے اپنی صورت نہ دکھانا۔ میں نہیں جانتا کہ تیرا شوہر کون بلا ہے اور اس نے کون سی امانت میرے پاس رکھوائی ہے۔ وہ تو انتہائی محتاج اور فقیر ہے، اس کے پاس 5000 دینار کہاں سے آئے کہ میرے پاس بطور امانت رکھوا دے؟ عورت بیچاری نا امید اور مایوس ہو کر اپنے گھر واپس لوٹ آئی اور شوہر سے بیان کیا کہ اس کا دوست اس بات سے انکاری ہے کہ تم نے اس کے پاس 5000 دینار رکھوائے تھے۔ سنار بیچارہ آنکھوں سے اندھا تھا اور بیماری سے نہایت ضعیف ہو رہا تھا، بدن میں طاقت نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں رکھتا تھا کہ خود اٹھ کر اس دوست کے پاس جائے۔ بیوی سے کہنے لگا، اچھا تو میرا دوست یہ کہتا ہے، شہر کا حاکم بھی میرا دوست ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور اس چلاک ہمسائے کا سارا حال بیان کرو۔ مجھے یقین ہے کہ اس معاملہ میں ہماری وہ مدد کرے گا اور ہمارے دینار اس چلاک آدمی سے ہمیں واپس دلوائے گا۔ وہ عورت بیچاری اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل میں محتسب کے پاس گئی اور اسے سارا حال بیان کیا۔ محتسب نے بھی جب اتنی خوبصورت عورت دیکھی تو فوراً ہی اس پر لٹو ہو گیا، اس کی الفت اور عشق میں گرفتار ہو گیا اور اس کو بظاہر لفظوں سے بہت تسلی دی اور کہا، میں سب کام چھوڑ کر ابھی تمہارے پیسے کے حصول کی تدبیر کرتا ہوں اور خدا نے چاہا تو تمہاری کوڑی کوڑی اس بد کردار آدمی سے تمہیں ایک لمحے میں وصول کروا دوں گا۔ بس تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا شوہر تو اتنا ضعیف اور بزرگ ہے، مریض بھی ہے، بیمار بھی ہے اور اندھا بھی ہے، تم جیسی جوان اور خوبصورت عورت، تمہارا دل کس طرح چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس رہو؟ اگر تم میری الفت اختیار کرو تو میں تمہیں 5000 دینار بھی دوں گا اور اس سے آزاد بھی کرواؤں گا، اور جو کچھ تمہیں اور درکار ہوگا میں اپنی طرف سے تمہاری خدمت میں پیش کروں گا۔ سنار کی بیوی حسن جان یہ بات سن کر بہت رنجیدہ ہوئی اور کہنے لگی، تمہیں اس بات سے کیا سروکار ہے کہ میرا شوہر جیسا بھی ہے؟ میں جس مطلب کے واسطے آپ کے پاس آئی ہوں، اگر آپ وہ حل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ صاف جواب دے دیجئے، میں صبر کر لوں گی اور اپنے گھر کا راستہ لوں گی۔ محتسب نے اس کی طرف مستی کی نگاہ سے دیکھ کر کہا، اے خوبصورت عورت، ایسی باتیں مت کر، میرے پاس بیٹھ اور 2 باتیں الفت کی سنا۔ عورت کا چہرہ یہ سن کر غصے سے سرخ ہو گیا اور چلا کر بولی، میں تم پر لعنت بھیجتی ہوں، تم حاکم شہر ہو کر ایسی بری نیت رکھتے ہو؟ ذرا خیال تو کرو کہ میں ایک بیکس عورت ہوں، مگر اب تک میری نیت یہ ہے کہ گو میرا خاوند اندھا اور اپاہج ہے، مگر میں اس کو اپنا مالک اور پشت پناہ سمجھتی ہوں اور سچے دل سے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہوں۔ خدا نے تم کو حاکم بنایا ہے اور عوام میں انصاف اور بہتری پر تمہیں مقرر کیا ہے، بجائے اس کے کہ تم اپنا کام کرو، تم دوسروں کی عورتوں پر غلط نگاہ ڈالتے ہو
और हराम कारी और बददयानती पर कमर बांधे रखे हो। मोहतसिब ने जो ये ताने औरत की जुबान से सुने तो गुस्से में आपे से बाहर हो गया और कहा, औरत, तेरा खाविंद कहाँ का नवाब है कि 5,000 दिनार किसी के पास अमानत रखता? तू बड़ी तेज तरार और जुबान दराज है और मेरे सामने ऐसी गुस्ताखी से बात करती है। अभी मेरे मकान से निकल जा और फिर कभी इधर का रुख न करना। वो औरत बेचारी आंसू बहाती सर झुकाए अपने मकान पर आई और शौहर से कहा कि मोहतसिब हमारे मामले में हाथ नहीं डालता। वो सुनार बेचारा ये सुनकर दम बखुद रह गया। थोड़ी देर के बाद औरत से बोला कि तू काजी के पास जा और उससे ये हाल बयान कर, शायद वो हमारी दाद रसी करे, क्योंकि मैंने उसका काम बहुत बनाया है और मुझसे बड़ी मेहरबानी से पेश आता था। औरत काजी के रूबरू गई और अपना माजरा सुनाया। काजी की नीयत भी उसके हुस्न और जमाल को देखकर बरकरार न रही। बड़ी खंदा पेशानी और मेहरबानी से उसका हाल सुना और कहने लगा, तुम दिल जमी रखो, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी उस बदजात से तुम्हारे दिनार वापस दिलवा दूंगा और जो तुम्हारा इरशाद होगा बस सरो चश्म बजा लाऊंगा। मगर ये तो कहो कि तुम्हारा शौहर तो अंधा हो गया है, बुजुर्ग है, तुम्हारा उसके साथ गुजारा कैसे होता है? तुमको अल्लाह ताला ने इतना हुस्न अता किया है कि जिस अमीर और रईस को चाहो एक दम में तुम्हारा गुलाम बन जाए, तुम्हारा हो जाए। तुम्हारा जौबन देखकर तो मेरे होशो हवास जाते रहे। जरा मेरे करीब आओ और मेरे दिल को तस्कीन दो। औरत ने ये कलमात सुनकर कहा, काजी साहब, जरा अपनी सफेद दाढ़ी को देखिए और अपने ओहदे का ख्याल कीजिए। आपके लायक ये बातें नहीं है। क्या हराम हलाल में आप तमीज नहीं कर सकते, या हलाल हराम का फर्क आपके नजदीक कुछ नहीं रखता? ऐसा मालूम होता है कि आपने अपने ईमान को बलाए ताक रख दिया हो, जो आपकी नीयत ऐसी बुरी हो गई है और ऐसी नाजेबा और खिलाफे तहजीब बातें आपकी जुबान से निकलती हैं। काजी ये बातें सुनकर निहायत गुस्से में आ गया और कहा, औरत, क्या टर टर करती है? तुझको मालूम नहीं कि मैं कौन हूं और क्या इख्तियार रखता हूं? चल यहां से निकल और खबरदार फिर कभी मेरे पास ना आना। उस सुनार की बीवी बेचारी परेशान उठकर काजी को अपने दिल में गालियां और सलवातें सुनाती वापस अपने घर आई और अपने शौहर से कहा कि तुम मुझे नाहक जलील करते हो। दुनिया में कोई दीन ईमान नहीं रहा और इंसाफ तो बिल्कुल खत्म हो गया है। हाकिमों के दिल से बिल्कुल इंसाफ उठ गया है। सुनार को यह हाल सुनकर बहुत दुख हुआ। आखिरकार अपनी बीवी से कहा कि तू कोतवाल को भी जाकर आजमा ले। वो मेरी मोहब्बत और दोस्ती का क्या हक निभाता है। मैं बरसों उसके वास्ते उम्दा उम्दा और किस्म किस्म की चीजें तैयार करता रहा और मजदूरी के तौर पर उससे कुछ नहीं लिया। अगर उसने मेरी खिदमत को भूला नहीं तो उम्मीद है कि हमारी दाद रसी जरूर करेगा, हमारी मदद करेगा। औरत कहने लगी, मुझे तुम्हारे हुक्म की तामील में कुछ उज़र नहीं, जो कुछ कहोगे बजा लाऊंगी। लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता कि जब मुहतसिब और काजी दोनों की नीयतें खराब हैं, दोनों ने जवाब दे दिया, तो कोतवाल से हमारा मतलब हल होगा। लेकिन ठीक है, उसको भी आजमा लेने में कोई हर्ज नहीं, दिल में अरमान न रहे। ये कहकर सुनार की बीवी अपने मकान से रवाना हुई और कोतवाल के पास पहुंची। कोतवाल की तबीयत भी उसकी सूरत और परी पैकर को देखते ही उसकी जानिब शौक से माइल हो गई। पूछा, ऐ नाज़नीन, तुम्हारा नाम क्या है और मेरे पास कैसे आने की तकलीफ की? औरत ने उसको रूबरू भी अपनी सारी दास्तान कह सुनाई। कोतवाल ने बड़े गौर से उसका सारा हाल सुना और कहने लगा, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, तुम्हारे हुक्म की तामील फौरन बसरो चश्म बजा लाऊंगा और उस चालाक मरदूद से तुम्हारे सारे दिनार वापस दिलवा दूंगा और उसको ऐसी सख्त सजा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। एक बात मेरी कबूल करो कि तुम आज मेरे मकान पर रहो और मेरे दिल को अपने मिलन से सरशार करो। उस सुनार की बीवी को कोतवाल की ये बात सुनकर बहुत तैश आया और उसको 1000 गालियां दी और जो कुछ जुबान पर आया और उसे कह दिया और उसके मकान से नामुराद वापस अपने शौहर के पास पहुंची और रोने लगी कि इस दुनिया में अब हमें इंसाफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तुम क्यों मुझे रुसवार ख्वार करने पर तुले हुए हो? सब्र करो और जिस तरह हो अपनी उम्र बसर करो। अपनी जान पर कहर करके खामोश हो जाओ, मगर रुपए की आग बड़ी बुरी होती है। थोड़ी देर बाद औरत से बोला, बीवी, यूं तो अपने दिल को सब्र नहीं आता, कुछ ना कुछ तदबीर जरूर करनी चाहिए, वरना दम मेरा इसी हसरत और रंज में निकल जाएगा। हुसन जान ने कहा, तुम जो कुछ फरमाओ मैं करूंगी। उसने कहा, वाली शहर बाकी रह गया है, उसके पास भी हो आना चाहिए कि शायद उससे हमारा हाल बयान करें तो कोई सूरत कामयाबी की निकल आए। औरत बेचारी ने अपना बुरका संभाला और वाली शहर की खिदमत में जा पहुंची।
मगर वहां भी वही बात पेश आई जो पहले मुहतसिब, काजी और कोतवाल के यहाँ हुई थी। किस्सा मुख्तसर, औरत ने वापस आकर खामन को समझाया कि तुम अपने 5,000 दीनारों का ख्याल दिल से निकाल दो और मजदूरी करके कुछ न कुछ जिंदगी गुजारने और पेट भरने की तदबीर करो। हमारे दिनार तो हमें मिलने से रहे। सुनार बेचारा अपनी आंखों में आंसू भर लाया और कहने लगा, मैंने अपनी सारी उम्र मेहनत और मुशक्कत करके ये 5,000 दिनार पैदा किए थे कि बुढ़ापे में अपनी जिंदगी आराम से बसर करूंगा। अब यकलख्त मेरी वो सारी कमाई बर्बाद हो गई। अब मेरी तबीयत में करार किस तरह आ सकता है? मेरी जिंदगी अब तलख हो गई है और मैं चाहता हूं कि खुदा जल्द अज जल्द मुझे इस दुनिया से उठा ले। औरत को अपने खाविंद की हालत जार पर बड़ा अफसोस हुआ और दुख हुआ और रंज हुआ और अपने दिल में कहने लगी, खुदा ने चाहा तो उस चालाक हमसाए और काजी वगैरह से ऐसा बदला लूंगी उनकी हरामजदगी और बेईमानी का कि वो याद करेंगे। अपने खाविंद से कहने लगी कि तुम चंद रोज सब्र करो और अपनी तबीयत को शाद रखो। मैंने एक तरकीब सोची है, अगर बन गई तो उन सब बदमाशों को ऐसा मजा चखाऊंगी कि तमाम उम्र ना भूलेंगे। ये कहकर सुनार की बीवी बाजार में गई और एक संदूक साज से कहा कि मुझको एक ऐसा संदूक बना दो जिसमें 4 बड़े बड़े खाने हों और हर खाने में इस कदर गुंजाइश हो कि एक आदमी आराम से उसमें बैठ सके और हर खाने का कुंडा अलग होना चाहिए। संदूक साज ने कीमत मुकर्रर करके कहा कि बहुत अच्छा, आज शाम तक मैं ये संदूक तैयार कर दूंगा। औरत अपने मकान पर वापस आई और अपनी कनीज को हुक्म दिया कि मकान को साफ करके फर्श पर अच्छी सी कालीन बिछा दो और सुबह ही चंद लजीज किस्म के खाने तैयार करके रख दो। शाम को संदूक तैयार होकर आ गया। तब हुसन जान खूब बनाव सिंगार करके और खूबसूरत साफ सुथरे कपड़े पहनकर उस चालाक हमसाए के पास पहुंची जिसे उसके खामिन ने 5,000 दीनार अमानत के तौर पर रखवाए थे। वो उसे देखकर बड़ा हैरान हुआ। वो बड़े नाजो अदा से कहने लगी कि तुम बड़े अच्छे इंसान हो, जरा से इम्तिहान में पूरे उतरे। उस रोज आकर मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ही तिरछी और कड़वी बातें सुनाई। मुझे बाद में बड़ा दुख हुआ। मुझे मालूम होता कि तुम इतने अच्छे हो तो मैं ऐसी बातें हरगिज ना करती। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे लो। मेरे दिल में बहुत रंज है और मैं इस कसूर के एवज तुम्हारी खिदमत में हाजिर हुई हूं और तुम्हारी तबीयत को खुश करना चाहती हूं। मैंने कल तुम्हारे वास्ते एक दावत तैयार की है अपने मकान पर। सुबह तुम वहां तशरीफ लाना और मुझे शुक्रिया का मौका देना। वो चालाक हमसाया जो सुनार की बीवी पर पहले से ही बहुत मरता था, उसकी बातें सुनकर उसकी बातें खिल गई। हंसकर बोला, ऐ जाने जहां, मैं हकीकत में तुम्हारे उस अदा को नहीं समझा था। मुझसे बड़ा कसूर हुआ कि तुमसे ऐसी बदजुबानी से पेश आया। तुम खुदा के वास्ते ऐसी बातों को अपने दिल में कुछ ख्याल न करना और मुझे अपना खादिम और गुलाम समझना। मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक सुबह तुम्हारे मकान पर हाजिर हो जाऊंगा और जो कुछ तुम्हारा हुक्म होगा दिलो जान से बजा लाऊंगा। बस हुसन जान वहां से रुखसत होकर मोहतसिब के घर पर पहुंची और उससे कहा कि ए राहते दिल, जिस वक्त से मैं तुम्हारे मकान से गई हूं तुम्हारी सूरत हर वक्त मेरी आंखों के सामने है और मैं अपने दिल में निहायत शर्मिंदा हूं कि उस रोज मेरी जुबान से तुम्हारे लिए ऐसे गलत कलमात निकले। बस मैं शर्मिंदा होकर अब तुम्हारे पास वापस आई हूं। मेरा इरादा था कि तुम्हारी खिदमत में हाजिर होकर तुमसे माफी मांगूं, लेकिन मारे शर्म के जुर्रत न पड़ती थी। आखिर रह ना सकी, हाजिर हुई। इस बात की उम्मीद रखती हूं कि मैं कसूरवार हूं। माफी के लिए मैं चाहती हूं कि कल सुबह मेरे मकान पर आप कदम रंजा फरमाएं और आपकी दावत करना चाहती हूं। फिर वो मोहतसिब के बराबर बैठ गई और उसके हाथों पर बोसा दिया। मोहतसिब उस हसीन औरत की ये दिल नवाजी देखकर एकदम से उसके दामे उल्फत में गिरफ्तार हो गया। कहने लगा, ज़हे नसीब कि तुम जैसा माशूक और ऐसी दिलदारी करे, मैं जरूर तुम्हारे कहने के मुताबिक कल सुबह तुम्हारी दावत पर आ जाऊंगा। औरत उससे भी रुखसत हुई और काजी की खिदमत में पहुंची और कहने लगी, मैं आपकी लौंडी हूं हुजूर, मेरा कसूर माफ कर दें। तमाम उम्र आपकी बंदगी में गुलामी में रहूंगी और कल आपके वास्ते कुछ दावत का सामान मैंने अपने मकान पर किया है। बराए करम मेरी दावत कबूल फरमाइए। काजी साहब उस खूबसूरत औरत से ये हाल सुनकर बहुत खुश हुए और अपने लिबास में फूले न समाते थे। उस सुनार की बीवी से कहने लगे कि हमारी तौबा जो हम तुम्हारी दावत का इनकार करें। मैं तो तुम्हारा मती और फर्माबरदार हूं। जैसा तुम्हारा इरशाद होगा बजा लाऊंगा। जिस वक्त कहोगी तुम्हारे मकान पर चलाऊंगा
औरत ने कहा, हुजूर कल सुबह के वक्त तशरीफ लाइए। ये कहकर उसने काजी की दाढ़ी को बड़े अंदाज से बोसा दिया और उससे रुखसत हुई और कोतवाल के मकान पर आई और उससे कहा, हुजूर जिस दिन से मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे साथ ऐसी बातें की, मुझे रात भर नींद ना आई, न दिल को आराम है। सख्त पशेमान हूं कि जिस रोज आपकी खिदमत में हाजिर हुई थी, मेरी जुबान से इतने नामौजू अल्फाज आपके वास्ते निकले थे। आप उनका कुछ ख्याल न कीजिए और मुझे अपनी कनीजों में शुमार करें। कोतवाल ने कहा, वल्लाह मुझको तुम्हारी उस रोज की बातों का कुछ ख्याल नहीं है, बल्कि मैं खुद शर्मिंदा हूं कि मैंने उस वक्त तुम्हें दुखी किया और चाहता था कि खुद तुम्हारी खिदमत में पेश होकर तुमसे माफी मांगूं। मैं तुम्हारे हुस्न इखलाक का कमाल ममनून और शुक्रगुजार हूं और तुम्हारे वास्ते दिलो जान फिदा करने को तैयार हूं। सुनार की बीवी ने कहा, आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? मैं तो खुद शर्मिंदा हूं और नादिम हूं, और चूंकि आपके मकान पर दिल खोलकर अपना हाले दिल कहने का मौका नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने ये इरादा किया है कि कल आप मेरे मकान पर तशरीफ लाएं ताकि मैं आपकी खिदमत बजा लाऊं। मैंने आपके लिए दावत कर रखी है। उस शख्स ने कहा, बेहतर है, मुझे क्या एतराज है, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं कल हाजिर हो जाऊंगा। सुनार की बीवी हुसन जान वहां से भी रुखसत हुई और वालिय शहर के पास आई और उसके कदमों पर गिरकर और उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, ऐ वालिय शहर, मुझसे ऐसा कसूर आपकी खिदमत में सरजद हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा और नादिम हूं, मगर आपकी ज़ात की बरकत से बड़ी उम्मीद माफ़ी की लाई हूं। मेरे दिल में यह ख्याल था कि मैंने उस दिन बड़ी नामौजू हरकत की है। आपके वास्ते कुछ खाने पीने की दावत का इंतज़ाम मैंने अपने मकान पर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि कल सुबह आप मेरे मकान पर कदम रंजा फरमाएं और मेरे गरीब खाने को इज्जत बख्शें, रौनक बख्शें और मुझे अपना ममनून फरमाएं। आपके मकान पर ऐसा मौका नहीं मिल सकता कि फुर्सत से बैठकर अपने दिल मुश्ताक की हसरत निकाल सकें, क्योंकि यहाँ तो हर वक्त दरबार लगा रहता है। इसलिए मैंने बहुत सोच कर तदबीर निकाली है, अगर आप मेरे मकान पर आ जाएं, तकलीफ तो होगी, मगर उम्मीद रखूंगी कि आप जरूर आएंगे। बराए करम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। वालिय शहर ये सुनकर बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि तुम बड़ी अक्लमंद हो और दूर अंदेश हो कि तुमने ये तजवीज़ निकाली है। मैं ज़रूर इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे कहने के मुताबिक सुबह तुम्हारे घर पर हाजिर हो जाऊंगा। सुनार की बीवी इस अजीम काम को सरअंजाम देकर वहां से खुश खुश अपने घर वापस आ गई। अपने मकान पर पहुंची और अपनी कनीज़ों के इंतजाम दावत मेहमानदारी में मसरूफ हो गई और अपने मकान को खूब सजाया। बहुत से लजीज खाने तैयार करवाए और मशरूब तैयार करवाए और करीने से उन्हें रखा और फिर रात से उठकर अपने बदन को निहायत नफीस लिबास और जेवरात से आरास्ता किया। खूब सज संवर गई। उस रात उनके चालाक हमसाए, मोहतसिब, काजी, कोतवाल, वालिय शहर, उन सब को रात भर उस हसीन औरत की जुदाई में नींद न आई। रात भर बेचारे पलंग पर पड़े तारे गिनते रहे और दुआ मांगते थे कि इलाही ये रात जल्दी खत्म हो जाए। और हर शख्स अपने दिल में इस बात पर नाज़ा था कि ऐसी नाजनीन परी चेहरा हमारे हाथ लगी है। गर्ज जब सुबह हुई तो चालाक हमसाया बड़ी खूबसूरत पोशाक पहनकर और बदन में इतर लगाकर, खुशबुएं लगाकर और 100 दिनार जेब में डालकर सुनार के मकान पर आया। वो सुनार की बीवी पहले से तैयार होकर इंतजार में बैठी थी। जिस वक्त उसको उसके आने का पता चला तो उठकर उसका इस्तकबाल किया और उसे एक उम्दा हुजरे में ले जाकर मसनद पर बिठाया और हुजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। चालाक हमसाये ने 100 दिनार जो अपने साथ लाया था उसकी नज़र किए। सुनार की बीवी ने अपनी कनीज़ों से शरबत और मेवे मंगवाकर उसके सामने रखे और फिर दावत का सारा सामान मौजूद हुआ और हुसन जान और चालाक हमसाया दोनों बैठकर खाने में मसरूफ हो गए। जब उससे फुर्सत हुई तो औरत ने चालाक हमसाये से कहा कि आज का दिन तुम यही मेरे पास रहो, ऐशो इशरत में गुजारो। बेहतर यह है कि तुम अपनी कीमती पोशाक उतार कर फरागत से बैठ जाओ। चालाक हमसाये ने औरत के कहने के मुताबिक अपनी दस्तार और कीमती पोशाक उतार दी। औरत ने अपनी कनीज को देकर कहा कि इनको दुरुस्त करके एक बक्शा में बांध कर रख दे, और फिर उस चालाक हमसाये की खातिरदारी और तवाज़ो में मसरूफ हो गई। इसी असना में कनीज ने, जिसको पहले से हुसन जान ने सिखा रखा था, दरवाजे पर दस्तक दी। औरत ने उठकर कहा, क्या बात है? तो कनीज कहने लगी कि आपका भाई आपका हाल पूछने के लिए आया है, मिलने के लिए आया है, आपके शौहर के पास है। हुसन जान उस चालाक हमसाये के पहलू से खड़ी हो गई और कहने लगी कि आप थोड़ी देर के वास्ते मुझे इजाजत दें, मैं अपने भाई को टाल कर अभी आती हूँ।
चालाक हमसाये ने कहा, बहुत अच्छा, देर न लगाना जाने मन, मुझ में अब ताकत नहीं रही कि तुमसे जुदाई और सह सकूं। जल्द आकर अपने मिलन से मुझे फैज़याब करना। औरत ने हुजरे से बाहर निकलकर हुजरे का कुंडा लगाकर उसे बंद कर दिया और संदूक 4 खाने वाला मंगवाकर हुजरे के बराबर रख लिया। इतनी देर में मुहतसिब आ पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। हुसन जान ने कनीज को भेजकर दरवाज़ा मकान का खुलवाया और खुद दरवाजे पर जाकर मुहतसिब के एजाज़ इकराम से अपने साथ लेकर अपने पहलू में बिठा लिया और मोहब्बत की बातें उससे करने लगी। फिर उसके वास्ते भी खाना मंगवाया और खाने से फारिग होने के बाद कहा कि आज आपको दिन भर और शब तक अपने मकान पर रखूंगी, तकल्लुफ दूर कीजिए और अपना खूबसूरत लिबास उतार कर आराम से बैठ जाइए। और फिर उसने कपड़े उसके उतरवा कर एक कनीज के हवाले कर दिए और 300 दिनार जो मुहतसिब अपने साथ लाया था उसने हुसन जान को दे दिए। उसके बाद सुनार की बीवी ने एक खूबसूरत पलंग बिछवाया और उससे कहा, मुहतसिब साहब आप इस पर आराम फरमाइए। मुहतसिब उस पर लेट गया और हुसन जान से बोला कि तुम भी आराम करो। वो बोली, अच्छा हाजिर होती हूँ। ये दोनों इसी गुफ्तगू में थे कि काजी साहब ने दरवाज़ा खटखटाया। कुंडा खटका। औरत ने कहा, कौन है? काजी ने कहा, मैं हूं। औरत ने फिर कहा, अपना नाम बताओ, कौन हो? काजी ने कहा, मैं काजी शहर हूं। मुहतसिब ने जो सुना तो घबराकर औरत से कहने लगा कि ए औरत, काजी यहां क्यों आया है? औरत ने ये सुनकर कहा, साहब आप फिक्र न करें, काजी साहब मेरे शौहर के दोस्त हैं, उनकी खबर हाल पूछने आए हैं। मुहतसिब ने कहा, मैं क्या करूं? औरत ने कहा, आप ये जो बराबर में संदूक रखा है इसके खाने में छुप कर बैठ जाए। मुहतसिब बेचारा बरहना उस संदूक के खाने में जा बैठा। औरत ने ढकना संदूक का बंद करके ताला लगा दिया और फिर काजी साहब के पास बड़े नाजो अंदाज से गई और उसका हाथ पकड़कर मकान में अपने साथ ले आई और मसनद पर बिठाकर उससे कहा, आपने मेरे हाल पर बड़ी मेहरबानी की, अब बफरगत तमाम दिन भर ऐश कीजिए और रात को भी यहीं आराम फरमाएं। यह कहकर खाना मंगवाया और काजी को खिलाया। जब काजी खाना खा चुका तो औरत ने काजी से कहा, आप अपने खूबसूरत कपड़े पोशाक उतार कर रख दें और बिला तकल्लुफ उसे अपना घर समझकर बेफिक्री के साथ यहां रख दें। काजी ने कहा, बहुत खूब, मैं ऐसा ही करूंगा, मगर जुदाई की ताकत मुझ में नहीं। तुम अब तकल्लुफ को काम में न लाओ और मेरे साथ आराम करो। औरत ने कहा, मुझे क्या एतराज है, मैं हाजिर हूं। बस काजी ने अपनी तमाम कपड़े उतार कर औरत को दिए। उसने अपनी एक कनीज के सुपुर्द किए और पलंग पर आराम किया। इस अरसा में कोतवाल ने आकर दस्तक दी। औरत ने पूछा, कौन है? उसने जवाब दिया कि मैं शहर का कोतवाल हूं। काजी कोतवाल का नाम सुनकर मारे खौफ के पलंग से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा और कहा, ला हौल वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला, इस वक्त ये शैतान यहां क्यों कर आया? और घबराकर औरत का बाजू पकड़ लिया और कहा, मैं मारा गया, खुदा के लिए कोई तदबीर निकालो कि मुझे कोतवाल देख ना पाए, वरना मेरी तमाम इज्जत खाक में मिल जाएगी। औरत ने कहा, आप क्यों फिक्र करते हैं, आप इस संदूक के खाने में जा बैठे, मैं थोड़ी देर में उसको रुखसत करके तुम्हारे पास वापस आती हूं। काजी का बदन खौफ से थराने लगा। औरत से बोला, नेक वक्त, कहीं कोतवाल को मेरे यहां आने की तूने खबर तो नहीं कर दी? उसने कहा, अस्तगफार, ये आप क्या सोच रहे हैं? कोतवाल से मेरे शौहर की दोस्ती है, वो उसकी बीमारी का हाल सुनकर उसके वास्ते आया होगा, जरा सी देर में वापस चला जाएगा। यह कहकर काजी को औरत ने संदूक के दूसरे खाने में बंद कर दिया और ताला लगाकर खुद कोतवाल के इस्तकबाल के वास्ते दरवाजे पर गई और देखा कोतवाल खूबसूरत पोशाक पहने और कुल्ला सर पर सजाए बड़े शौक से खड़ा था। औरत ने कहा, साहब मैं तो आपके इंतजार में बड़ी देर से बैठी थी, आप बड़ी देर से तशरीफ लाए, खैरियत थी? कोतवाल कहने लगा कि मुझे तुम्हारे मिलन के इश्तियाक में रात भर नींद न आई तो पिछले पहर आंख लगी थी, इसीलिए सुबह जरा देर से उठा। माफ करना, मुझको बड़ा दुख है कि तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। औरत ने कहा, आप इसके बारे में अब कुछ ना सोचें और जल्दी से अंदर आ जाइए, मुझे तो बड़ी खुशी है कि आप आ गए। कोतवाल ने जो ये नवाजिश औरत की तरफ से अपने हाल पर देखी तो उसको दिल में यकीन हो गया कि ये औरत मुझे दिल में चाहती है। बस उसकी गर्दन में हाथ डालकर कहा, मुझसा खुशकिस्मत आदमी इस दुनिया में दूसरा नहीं होगा जिसे ऐसा महबूब दिलरुबा मैसर आ जाए और मुझसे ऐसी उल्फत और मोहब्बत करे और खातिरदारी से पेश आए। बस औरत ने उसको भी काजी और मुहतसिब की तरह बिठाकर खाना खिलाया और बातें बनाकर रिझा लिया और कपड़े उसके बदन से उतरवाकर कनीज के हवाले किए। कोतवाल ने 500 दिनार जो अपने साथ लाया था सुनार की बीवी को दिए और कहा, ए वफादार यार, अब तू मेरे
पास आकर मेरी मुराद पूरी कर। औरत ने कहा, आप जल्दी क्यों करते हैं, जरा दम तो लें। आज का दिन और रात आपकी मेरे ही वास्ते हैं। ये कहकर उसको इस कदर देर तक बातों में मशगूल किया कि वालिय शहर ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी। कोतवाल उसकी आवाज सुनकर दम बखुद हो गया और हैरान परेशान होकर भागने का इरादा किया तो औरत कहने लगी, आप घबरा क्यों गए? कोतवाल ने कहा, तुम्हारी मोहब्बत और दोस्ती पर लानत है, तुमने मुझे दुश्मन के हाथ गिरफ्तार करवा दिया। औरत ने कहा, आपका ख्याल गलत है हुजूर, वालिय शहर मेरे शौहर से बहुत मोहब्बत रखता है, दोस्त है उनका। उनकी बीमारी का हाल सुनकर उसको देखने के वास्ते आया है और कोई बात नहीं है। कोतवाल ने कहा कि अब मैं क्या करूं और इस बला से कैसे पीछा छुड़ाऊं? तो औरत बोली, एक लम्हा के वास्ते जरा संदूक में छुप जाइए। कोतवाल दौड़कर संदूक के खाने में जा छुपा। औरत ने उस तीसरे खाने को भी ताला लगा दिया और वालिय शहर को बड़े एजाज़ो इकराम से इस्तकबाल करके अपने मकान में ले आई। वालिय शहर ने 1000 दिनार औरत को दिए और कहा, मैं तुम्हारी जुदाई में रात भर तड़पता रहा, सुबह ही चाहता था कि अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे पास आ पहुंचूं। बस मेरी बदकिस्मती के बादशाह ने मुझे याद कर लिया और उसकी खिदमत में हाजिर रहा और अपने दिल में शर्मिंदा था कि तुम्हें वक्त देकर वक्त पर न पहुंच सका और तुम्हें इंतजार करना पड़ा। मुझे तुमसे मोहब्बत की उम्मीद है, मुझे माफ कर दो। औरत ने कहा, आप क्यों शर्मिंदा करते हैं? मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझ नाचीज का इस कदर ख्याल रखा। मैं तो आपकी खादमाने खादिम हूं। अब कुछ ख्याल न करें और बिला तकल्लुफ इस पलंग पर आराम फरमाएं और मुझ तिश्नाए लब को अपने मिलन से मसरूर करें। शौहर ने जब हुसन जान के इस तरह के इल्तफात को देखा तो बहुत खुश हुआ, पलंग पर दराज हो गया। औरत ने कहा, आपकी बेशकीमती पोशाक कपड़े खराब हो जाएंगे, तकल्लुफ दूर कीजिए और कपड़े उतार कर आराम से बैठिए, लेटिए। वालिय शहर ने फौरन अपने कपड़े उतार दिए और पलंग पर लेट गया। औरत ने वालिय शहर के भी कपड़े कनीज के हवाले किए और उसके कान में कहा कि जैसा मैंने तुझको समझा रखा है, तू जाकर बाहर से दस्तक दे और जब मैं पूछूंगी कि कौन है तो कहना कि मैं तुम्हारा भाई हूं। बस कनीज को यह हिदायत करके हुसन जान वालिय शहर के पास आई और उससे बातें करने लगी। इसी दौरान में कनीज ने बाहर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी और जब हुसन जान ने पूछा कि बाहर कौन है तो जवाब मिला कि मैं तुम्हारा भाई हूं, दरवाजा खोल दो। औरत ने वालिय शहर से कहा कि मेरा भाई आया है, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जरा उसे वापस भेज लूं। वालिय शहर ने कहा, मैं इस बरना हालत में मकान में कैसे बैठा रहूंगा? औरत ने कहा, आप थोड़ी देर के वास्ते तकलीफ तो होगी, मगर मुनासिब होगा कि आप इस संदूक के अंदर जाकर छुप जाएं, थोड़ी देर के लिए बैठे, मैं अपने भाई को रुखसत करके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। वालिय शहर ने कहा, मजबूरी है। बस वो संदूक के चौथे खाने में जाकर बैठ गया और औरत ने ऊपर से ताला लगा दिया। जब औरत ने उन चारों शख्सों को, मोतसिब, काजी, कोतवाल और वालिय शहर को अपनी कैद में ले लिया तो उस मकान से चलकर हुजरे में जहां वो चालाक हमसाया बैठा हुआ था उसके नजदीक आकर बैठी और उसकी गर्दन में हाथ डालकर कहने लगी, मुझसे हर दम तुम्हारी निस्बत कोई ना कोई कसूर हो जाता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। माफ करना, मेरा भाई जिस वक्त से आया था मैं हजारों तरकीबें कर चुकी हूं कि किसी तरह उसे वापस रुखसत कर दूं, मगर वो तो जमकर बैठ गया है, हरगिज नहीं टल रहा। अब 1000 दिक्कत मैंने उसको रुखसत किया है। चालाक हमसाए ने कहा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? ये तो इत्तफाकिया तौर पर हो गया, तुम इस बात का कुछ ख्याल ना करो। मुझे कुछ तकलीफ नहीं, आराम से यहां बैठो, मगर तुम्हारी जुदाई का सदमा ऐसा सख्त है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब तुम खुदा के वास्ते कहीं चली ना जाना। औरत ने कहा, भला ऐसा हो सकता है? मैं तो तुमसे ज्यादा तुम्हारे लिए बेकरार हूं, बाकी सारा दिन और तमाम रात तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूं। ये कहकर कमाल अंदाज से अपना हाथ उसकी गर्दन में डाला और उसको हुजरा के अंदर से संदूक के पास बाहर ले आई और कहा कि ये पलंग और ये शब ख्वाबी, ये सब तुम्हारे ऐश के वास्ते मुहैया कर रखे हैं। चालाक हमसाए ने कहा, तुम कहां तक मुझसे अपनी तारीफ करवाओगी? मैं तुम्हारी कोई बात दानिशमंदी से खाली नहीं देखता। लो आबाओ, देर क्यों लगाती हो? मैं बहुत बेताब हूं तुम्हारे लिए। औरत ने कहा, साहब तुम बहुत जल्दबाज हो, ऐसे क्यों घबराते हो जी? मैं तो खुद तुम्हें यहां बड़ी मुराद और ख्वाहिश से लाई हूं। तुमको अपने मतलब की तो खूब सोच रही है। ये फरमाओ कि मेरे 5000 दिनार का भी कुछ फिक्र है तुम्हें या नहीं? तुमने वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारी आरजू पूरी करूं तो तुम मेरे 5000 दिनार देने में कोई जरा भी तामुल नहीं करोगे। अब पहले अपना वादा पूरा कीजिए। चालाक हमसाए ने कहा, जाने मन, मैं किस वक्त अपने वादे से मुकरा हूं? तुम ये ताना क्यों देती हो? मेरे पास 5000 दिनार तो तुम्हारी अमानत है, वो तुम्हारे हवाले कर दूंगा।
और 5,000 दिनार मैं तुम्हें अपनी तरफ से दूंगा तोहफे के तौर पर, मगर अब वक्त निकल रहा है, खुदा के लिए मेरे पास पलंग पर आओ और मुझे अपने मिलन से शाद करो। औरत ने कहा, साहब मैं तो एक औरत नादान और बेवकूफ़ हूँ और आप इतने समझदार और चालाक हैं, मगर इतना दिल में मैं भी समझती हूँ कि जब तुम्हारी मुराद पूरी हो जाओगी तो फिर तुम्हारी नज़रों में मेरी कोई वक़्त और अहमियत ना रहेगी और ना मालूम कि तुम्हारी नीयत में क्या फ़र्क आ जाए। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जैसा मैं अपना वादा पूरा करने पर तैयार हूँ, तुम भी वो 5,000 दिनार मंगवा कर मेरे सामने रख दो। चालाक हमसाया जो कि मस्ती में भरा हुआ था बोला, ए औरत, तुम्हें इस वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें जेब नहीं देती, थोड़ी देर के वास्ते मेरा एतबार कर लो। मैं कसम खाकर कहता हूं कि अभी यहां से फारिग होकर तुम्हारे 5,000 दिनार तुम्हारे पास भेज दूंगा। औरत ने कहा, खैर मैं तुम्हारा कहना मान लेती हूं, मगर तुम इन अल्फाज से इकरार करो कि तुम्हारे पास मेरे 5,000 दिनार अमानत रखे हैं और तुम वो देने में ज़रा भी तामुल नहीं करोगे, तुम्हें उनके देने में कोई एतराज़ नहीं, और ये मकान और संदूक और मोहतसिब, काजी और ये शख्स वाली शहर, ये सब इसके गवाह हैं। उस चालाक हमसाये ने उसी वक्त इकरार कर लिया। तब औरत ने कहा, अब आप उस हुजरा में चलने जहां पहले से बैठे थे, क्योंकि ये मकान खोला हुआ है, यहां पर ठहरना मुनासिब नहीं। ये कहकर जामे शब ख्वाबी चादर पलंग लपेट कर उसकी बगल में दी और कहा, मैं दरवाज़ा बंद करके अभी तुम्हारे पास आती हूँ। ये कहकर वो सुनार की बीवी मकान से बाहर आई और अपने हमसायों से कहने लगी कि मेरे मकान में एक चोर आकर घुस गया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मेरा शौहर नापीना और बीमार है और कोई मर्द मेरे घर में नहीं है। औरत ने इस तरह वावेला किया तो 5 आदमियों को इकट्ठा करके अपने मकान पर ले आई और अपनी कनीजों को, जिन्हें पहले ही वो सिखा गई थी, उन्होंने जब देखा कि कुछ मर्द उसके साथ आ रहे हैं तो उन्होंने चोर चोर करके शोर मचाना शुरू कर दिया। गर्ज ये कि लोगों ने मकान में आकर देखा कि वो चालाक हमसाया नंगे बदन लंगोट बांधे हुए, कपड़ों की गठड़ी बगल में दबाए वहां बैठा हुआ था। सब के सब उसके ऊपर गिर पड़े और उसको दाढ़ी पकड़कर लात और घोंसे, थप्पड़ और जूतियों से ऐसी उसकी खबर ली कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया, लोग उसको पकड़कर उसकी दाढ़ी नोचते और सर पर धोले लगाते मकान से बाहर ले आए। जब वो गली में बाहर उस कूचे के करीब पहुंचे जहां उस चालाक हमसाये का मकान था, तो हमसायों ने उसको पहचान लिया और फिर बड़ी खुशामद करके उसको छोड़ दिया। इसी दौरान सुनार की बीवी शोर मचाती रही कि इस मलून ने मेरे 5,000 दिनार ले रखे हैं। लोगों ने समझा कि औरत का मतलब यह है कि 5,000 दिनार चालाक हमसाये ने चुराए हैं। सब ने जो गठड़ी उसकी बगल में तबी हुई थी उससे लेकर खोला और हुसन जान को देखकर कहा कि तुम गलत कहती हो, ये अगर तुम्हारे दिनार चोरी करता तो सिवाय इस कपड़ों के और कहां रखता। औरत ने लोगों के कहने पर कुछ तवज्जो ना की और उस चालाक हमसाये को पकड़े बराबर फरियाद करती हुई बादशाह की खिदमत में ले गई और अर्ज किया कि जहां पना, इस बदकिरदार इंसान ने मेरे ऊपर बड़ा सितम किया है कि मेरे 5,000 दिनार जो मेरे शौहर ने इसके पास अमानत रखवाए थे नहीं देता। बादशाह ने कहा, तू इसे मेरे पास क्यों लाई है, तू इसे मोहतसिब के पास क्यों ना ले गई। औरत ने कहा, हजूर मोहतसिब मुझे नहीं मिला। बादशाह ने फरमाया, तो काजी के पास ले जाती। औरत बोली, जहां पना काजी भी मकान पर नहीं है। बादशाह ने कहा, काजी भी नहीं मिला तो तुझे इसको कोतवाल के पास ले जाना चाहिए था। औरत ने गुजारिश की, हजूर कोतवाल भी गायब है। बादशाह ने कहा, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आती कि तीनों मोअज़्ज़ज़ अराकीन सल्तनत एकदम से गायब हो जाएं। मगर मैं तेरी बात मान भी लूं तो फिर तुझे इसको वाली शहर की अदालत में ले जाना लाजिम था। औरत ने कहा, हजूर को यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं वाली शहर की अदालत में भी गई, वो भी नहीं थे। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गया और गुस्सा होकर औरत से कहा, तू बड़ी बेअदब और गुस्ताख है कि ऐसे बेबाकाना तौर से मेरे हजूर में झूठ बोलती है। भला ये कैसे सोचा जा सकता है कि मोहतसिब, काजी, कोतवाल और वाली शहर सब एक ही बार सब गायब हो गए हों। शायद तू दीवानी हो गई है कि ऐसी बात मेरे रूबरू कहती है। ये कहकर बादशाह ने अपने चौबदारों को हुक्म दिया कि इस दीवानी को हमारे सामने से हटा दो। चौबदार बादशाह के हुक्म की तामील के वास्ते औरत के करीब आया तो औरत ने बादशाह की तरफ देखकर मुखातिब होकर कहा, अफसोस है कि आप जैसे आदिल और मुनसिफ मिजाज होकर बिला सोचे समझे तहकीकात के मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। आपने मेरी बातों की तस्दीक तो की होती, अगर मेरा बयान सच ना निकलता तो आप मुझको जो चाहे सजा दे सकते थे। बादशाह ने कहा, खैर शायद तेरी शामत ने तुझे भड़काया है जो तू ऐसे झूठ और मुबालगा राई से काम लेती है।
बहरहाल तेरी गुजारिश पर मैं तहकीकात करता हूं, मगर अपने दिल में खूब याद रख कि अगर तेरी बातें झूठी निकली तो तेरा मुंह काला करके तुझे अपने मुल्क से निकलवा दूंगा। हुसन जान ने कहा, मुझे ये मंजूर है बादशाह सलामत। पस चौबदार बादशाह के कहने के मुताबिक दौड़ा गया और वापस आकर गुजारिश की, जहां पना ये औरत सच कहती है, हकीकत में वो चारों मौजूद नहीं है, ना कोतवाल, ना काजी, ना वाली शहर, न मोहतसिब। बादशाह इस बात पर बड़ा हैरान हुआ और उस चालाक हमसाये की तरफ देखकर कहने लगा, सच सच बता कि तूने इस औरत के 5,000 दीनार देने हैं या नहीं। तो उस चालाक हमसाये ने इनकार किया। तब बादशाह ने औरत से कहा, तेरे पास कोई गवाह है कि वाकई इसने तेरे 5,000 दीनार देने हैं? तो हुसन जान कहने लगे, जी हुजूर, मैं इस बात के गवाह रखती हूं। बादशाह ने कहा, अच्छा, अपने गवाह को लेकर आ। औरत ने अर्ज की कि हुजूर, अपने मुलाजमों से कहकर मुझे एक छकड़ा इनायत कर दें। बादशाह को उसकी बात पर बड़ी हंसी आई। बादशाह ने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि एक छकड़ा लेकर इस औरत के साथ जाओ और उस चालाक हमसाये को हुक्म दिया कि तुम यहीं रहो जब तक ये औरत वापस ना आ जाए। औरत छकड़ा लेकर अपने मकान पर आई और संदूक को छकड़े पर लाद कर बादशाह के महल की जानिब रवाना हुई। जब महल के करीब पहुंची तो बादशाह ने दूर से देखा कि औरत छकड़े पर एक बड़ा भारी भरकम संदूक लादे चली आ रही है। बादशाह ने उस चालाक हमसाये से कहा, बोल, तुझे अब भी इनकार है कि उसका दावा गलत है? चालाक हमसाये ने कहा, खुदावंद, ये औरत झूठ बोलती है, मुझे इसका एक धिला भी नहीं देना। बादशाह ने औरत से कहा कि अपने गवाह पेश कर। औरत ने कहा, हुजूर, ये संदूक मेरा गवाह है। बादशाह ने कहा, तेरी अकल किधर गई है? कहीं काठ का संदूक भी बोलता है और यह संदूक तेरी गवाही देगा? औरत ने कहा, हुजूर, मेरा तो यह संदूक ही गवाह है। बादशाह ने हंसकर और संदूक की तरफ मुखातिब होकर कहा, संदूक, तू क्या गवाही देता है? कुछ जवाब न मिला। बादशाह को बड़ा तैश आया और बवाज़े बुलंद खफा होकर कहा, औरत, तू बड़ी चर्ब जुबान और तेज तरार है। तुझको शायद अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है कि तूने मेरा भी ये तमाशा मुकर्रर किया और मुझको बेवकूफ़ बनाती है। औरत ने हाथ बांधकर कहा, जहां पना, मेरी क्या जुर्रत कि मैं ऐसी हरकत करूं। मैं सच कहती हूं कि यह संदूक मेरा गवाह है। बादशाह ने कहा, अब तू और क्या चाहती है? औरत ने कहा, हुजूर, जरा हुक्म दें कि थोड़ा सा घास फूस इकट्ठा करके इस संदूक में आग लगा दी जाए। अगर इस पर भी संदूक मेरी गवाही नहीं देगा तो जो आपका जी चाहे मेरे लिए हुक्म फरमा दें, जो चाहे सजा मुझे दे दे। चुनाचे बादशाह के हुक्म के मुताबिक मुलाजमों ने घास फूस में आग जलाकर संदूक के ऊपर रख दी। जब आग की गर्मी का असर संदूक को पहुंचा और उसके खानों में धुआं भर गया तो एक ही बार मोहतसिब, काजी, कोतवाल और वाली शहर सब चिल्ला पड़े कि हुजूर, हम गवाह हैं कि इस चालाक हमसाये ने इकरार किया था कि इसने औरत को 5,000 दीनार देने हैं, जो इस औरत के शौहर ने इसके पास अमानत रखवाए थे, और वो उसके देने में किसी किस्म का कोई उज़र नहीं करेगा। बादशाह और सब अराकीने सल्तनत ये सुनकर शशदर रह गए और बादशाह ने हुसन जान को अपने करीब बुलाकर उससे पूछा कि तुमने हमें खूब तमाशा दिखलाया, अब इस मुहिम्मे का असल हाल मेरे सामने बयान करो। औरत ने कहा कि इस संदूक के ताले खुलवाए जाएं। चुनाचे एक खाने का ताला खोला गया तो उसमें से मोहतसिब बरहना बरामद हुआ और इसी तरह बाकी तीनों खानों में से काजी, कोतवाल और वाली शहर निकले। बादशाह और हाजरीन उनको देखकर हैरान रह गए और काजी और उसके तीनों दोस्त यानी मोहतसिब, कोतवाल, शहर वाली, कमाल, खजल और शर्मसार अपनी गर्दनें नीचे झुकाए बरहना खड़े हो गए और उन सब की ऐसी हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। बादशाह ने औरत को हुक्म दिया कि तुम तमाम सरगुज़श्त हमारे रूबरू बयान कर। चुनाचे औरत ने तमाम किस्सा बादशाह और हाजरीन के सामने दरबार को सुना दिया और सब ने औरत की पारसाई और दनाई और हिम्मत और लियाकत पर आफरीन की, उसकी तारीफ की। और बादशाह ने उस चालाक हमसाये को कैद करके उसकी तमाम दौलत औरत को अता करने के हुक्म दिया और मोहतसिब, कोतवाल, काजी और वाली शहर का मुंह काला करके उनको गधों पर सवार कराकर घुमाया और फिर तमाम शहर में उनको फिराने के बाद उन्हें अपने मुल्क से निकाल दिया।